Hello guys, welcome to my channel Learn Psychology with Divya. I hope you're doing absolutely fine. And yeah, this video is all about schizophrenia that you should know. So, if you are a psychology student or a psychology trainee or just you have interest in psychology, then this video is definitely for you. So, this video is all about schizophrenia and what is schizophrenia, what is its type according to textbook. I am going to cover all the topics and everything that you have to know about this disorder. Okay, if you are 11th class student, I have already uploaded chapter 1 part 1, so you can just click on the link above and go to that video and watch it. So yeah, let's start with this video without wasting your time. So just a little thing I'm gonna share about myself. Hi, my name is Divya and I am a psychology student. I did my bachelor's and now I'm going to pursue my master's. So let's get started with this video. Okay, so let's start with the very basic thing, that what is schizophrenia. Okay, so basically I have two case histories. Imagine a 25-year-old woman cries and tell you that she is hearing voices of people crying and abusing her. This is the first case. And the another case is a 45-year-old woman sits silently for days, doesn't respond to anything or anyone. She blankly stares at you if you try to strike a conversation with her. Okay, so both these cases are of schizophrenia. Okay, so just schizophrenia is a broad spectrum of conditions that affect individuals' cognitive and emotional functioning, including delusions and hallucinations, right? So schizophrenia is a serious condition that affects almost all aspects of daily functioning of a person. Simple, right? I have given some reference of movies that you can watch and understand this disorder, okay, in the last. Okay, so watch till the very end. And now so this is one of the most complex and severe mental disorder. Okay, so about 50% of people with schizophrenia also have comorbid substance abuse and they are 12 times more likely to commit suicide than the general population. Okay, so here DSM-5 के क्राइटेरिया के हिसाब से सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक डिल्यूजन के अंदर हम और टाइप्स के अंदर हम अभी आगे बात करेंगे वीडियो में. लाइक डिल्यूजन सिम्टम्स सच एज डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, grossly disorganized and catatonic behavior, negative symptoms such as diminished emotional expressions. Okay, so now let's talk about the types of schizophrenia, symptoms के type. Like there are 3 types of symptoms of schizophrenia: positive symptoms, negative symptoms and disorganized symptoms. So positive symptoms के अंडर हमारे आता है delusion and then hallucination, and negative symptoms जैसे कि avoidation, एलोजिया, एनेडोनिया, एसोसियलिटी एंड फ्लैट इफेक्ट, एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के अंदर आ जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच इटसेल्फ एंड डिसऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर. सो दीज आर द टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया दैट वी स्टडी. तो अब हम इनके एक एक करके टाइप पे आते हैं. इसका जो चार्ट है मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी एंड इसके अगर हम टाइप्स पे आते हैं एक एक करके इस पर बात करते हैं. तो सबसे पहले आता है डिल्यूजन.
ओके, तो डिल्यूजन एक लैटिन वर्ड है जो कि ल्यूड्रे इस वर्ड से आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू प्ले, ठीक है। डिल्यूजन आर ट्रिक दैट द माइंड प्लेस ऑन एन इंडिविजुअल। ये क्या होती है, माइंड की ट्रिक्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल पे माइंड प्ले करता है। दैट इज़ लाइक, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिल्यूजन जो कि रियल में है नहीं, बट उस इंसान को पूरा यकीन है कि वो चीज़ है। ओके, दीज आर द बिलीफ, कॉग्निटिव बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो लाइक, ठीक है, जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो जैसे a person has a belief that he or she has some kind of superpowers. Okay, so these type of delusions, like this kind of beliefs which are not real, are come under delusion category. Okay, now let's move to the hallucination part. So hallucination, as we all know, hallucination is like it is also a false sensory things that we hear, see or like feel about. Okay, hallucination वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सेंसरी मोडालिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि ऑडिटरी, लाइक हमको कुछ भी ऐसा रियल में कुछ है नहीं, बट हमें वो चीज़ें सुनाई दे रही है, किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, एंड दैट वॉइस इज़ गिविंग यू इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। अगर मेरे को सिजोफ्रेनिया है, सो मुझे लाइक आवाज़ें आ रही हैं कि द पर्सन, द अपोजिट पर्सन, जो भी मेरे सामने पर्सन है, वो लाइक ही इज़ गोइंग टू हार्म यू, और उससे पहले तुम उसको हार्म कर दो, लाइक दिस काइंड ऑफ हियरिंग वॉइस। और मेरे को उसकी बातें सुनाई दे रही हैं एंड मैं उसकी बातें मान भी रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ द ऑडिटरी थिंग। एंड लाइक इसमें विजुअल थिंग्स भी हैं, विजुअल हेल्यूसिनेशन, लाइक मेरे साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कोई बैठा हुआ है, बट इन रियलिटी मेरे साथ में कोई भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ विजुअल, लाइक मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा विजुअल में। एंड लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ दिस, लाइक ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, सो इसमें है कि हमको ना स्मेल आती है, लाइक हमको ऐसे स्मेल, पॉइजन की स्मेल आ रही है कि इस खाने में ना पॉइजन मिला हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। एंड टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन इंक्लूड्स मिसपरसेप्शन ऑफ अ पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली फीलिंग दैट एंड्स आर क्रॉलिंग अप द आर्म्स, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ रही हैं, ऐसी उसको फीलिंग आती है, ठीक है। ये आ गया टेक्टाइल में। एंड गैस्टेटरी में आ गया, गैस्टेटरी हेल्यूसिनेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन विद सिजोफ्रेनिया हु कैन टेस्ट बिटरनेस इन एवरीथिंग दैट दे ईट और ड्रिंक। सिंपल, लाइक उनको हर चीज़ जो वो खाते हैं और जो वो पीते हैं उसमें उनको कुछ बिटरनेस फील होता है, लाइक कड़वा तीखा कुछ फील होता है, ओके। So these were the type of hallucination that we talked about. Now let's move to negative symptoms. So negative symptoms हमने 5 बात की थी। सबसे पहले हम evaluation की बात करते हैं। तो evaluation refers to lack of motivation and seeming absence of will, interest, inability to persist in routine activities like self care, work or school, ठीक है। evaluation simply बोला जाए तो लैक ऑफ मोटिवेशन है, यानी हमें अंदर से मोटिवेशन ही फील नहीं होता है और हमारे अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कोई भी चीज़ करने का। मतलब हम डेली लाइफ में भी जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं लाइक ब्रशिंग, बैथिंग, सो इन सब चीज़ों में भी हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो दिस कम्स अंडर एवोल्यूशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलॉजिया, ठीक है। तो एलॉजिया मीन्स सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ स्पीच,
ठीक है, मतलब इस सिम्टम में जो लोग हैं उनको बोलना पसंद नहीं है, बातें करना पसंद नहीं है, दूसरों को मतलब रिस्पॉन्ड करना पसंद नहीं आता है. सो लाइक इनके अंदर इनएडिक्वेट कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड another thing, which is anhedonia. So anhedonia is a presumed loss of interest and experience of reported pleasure in activity that are typically considered pleasurable for everyone, such as food, socialization and other things. Okay, so anhedonia में ये है कि इंसान को उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. जैसे कि खाना खाना, ठीक है, सोशलाइज करना, अपनी कोई हॉबी परस्यू करना, टीवी देखना, फ़ोन चलाना या फिर दोस्तों से मिलना, एनीथिंग. ओके, सो इन सब में जो पर्टिकुलर इंसान जिसको सिजोफ्रेनिया है उसका बिल्कुल ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. एसोशियलिटी समझते हैं. एसोशियलिटी के जैसे है होते हैं सीवियर इम्पेयरमेंट इन सोशल रिलेशनशिप, यानी उनको उनकी बहुत ज़्यादा पुअर सोशल स्किल्स होती हैं. उनको दोस्त बनाना, लाइक उनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लाइक वेरी फ्यू, एंड उनकी सोशल स्किल्स बहुत पुअर होती है. उनको दूसरों के साथ रहना, बातें करना, मिलना में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग, और इनको इंटरेस्ट भी नहीं आता. इन लोगों को ज़्यादा क्या है, अकेले रहना पसंद होता है. ठीक है, now let's go to flat effect. So flat effect is a lack of outward expression of emotion. ठीक है, तो लाइक इन लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता है. ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. A person with this symptom may appear to be inexpressive, have a poker face, yeah, and stare lifelessly at others, and the muscle of the face will lay motionless. मतलब उनके फेस पे कोई भी इमोशन होते ही नहीं है. ठीक है, उनको कोई भी इमोशन, अगर तुम उनको डरा भी रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू फील एक्सप्रेस द फियर ऑन देयर फेस. ओके, उनका बिल्कुल फ्लैट फेस होता है, लाइक दिस. मतलब उनके पास कोई हंसना, रोना, गाना कुछ भी नहीं. ओके, so now let's move to disorganized speech. So disorganized symptom, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे disorganized speech. ओके, disorganized speech आप समझ ही रहे हो, मतलब उनको बोलने में, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, जैसे मतलब रुक के बोलना, लाइक बहुत सारी स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं वो. ठीक है, उनके जो वर्ड्स हैं वो तुमको समझ नहीं आएगा वो क्या, मतलब एक सेंटेंस बोल रहे हैं और अचानक से ही वो दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हैं. लाइक हियर इज़ वन एग्जाम्पल, लाइक माई cat is fat, I like monkey soup, like this. I don't know, I'm saying. Okay, so disorganized speech होती है बेसिकली इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं, और सामने वाला तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता कि ये बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा फम्बल्ड होते हैं और इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो अचानक से किसी भी टॉपिक पे जंप कर जाते हैं. ओके, लाइक अभी एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि आई लाइक टू कुक, फिर नेक्स्ट सेंटेंस उनका होगा कि आई डोंट नो, लाइक कुछ भी अदर टॉपिक. ठीक है, सो basically this comes under disorganized speech. And now talk about disorganized affect and behavior. So basically इसमें भी सेम चीज़ है जैसे हमने पढ़ा था एनेडोनिया और उन सब चीज़ों में, कि ये जो लोग होते हैं इनको बिल्कुल भी ये क्या कर देते हैं, लूज देयर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज देयर बिहेवियर टू मेक इट कन्फर्म टू सोशल स्टैंडर्ड. यानी अगर सोशल स्टैंडर्ड ये है किसी भी बिहेवियर का, सो उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ स्टैंडर्ड है. दे कैन बी हाई और दे कैन बी लो ऑफ द स्टैंडर्ड. ठीक है, उनको नहीं पता है कि क्या है. उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा
लाइक डिसऑर्गेनाइज्ड होता है. ओके, या आई थिंक आपको इसके सारे टाइप्स समझ में आ गए हैं. सो लाइक सिम्टम्स के, दीज वर द टाइप्स ऑफ सिम्टम्स of schizophrenia. Okay, so let's talk about three classic types of schizophrenia. So first one is paranoid schizophrenia. इसके primary features हैं prominent delusion and auditory hallucination, usually centered around a single theme. ठीक है, इसके की characteristics क्या होते हैं? The person often retain relatively intact cognitive function, speech and emotion compared to other types. Okay, they may feel constantly watched, target, or believe that they have a secret high stake mission. ठीक है, for example, believing the government is monitoring their thoughts through their television. Okay, the second type is disorganized schizophrenia. तो इसका प्राइमरी फीचर है disorganization in thoughts, speech and behavior alongside inappropriate or flat emotional responses. इसके की फीचर्स होते हैं speech can turn into word salad like a jumble of disconnected words, जो कि मैंने पहले भी बताया. Okay, behavior can seem unpredictable, childish or purposeless. Okay, emotions are often inappropriate, like laughing during a sad story or showing no emotions at all. Daily tasks like bathing, dressing or making food become extremely difficult for them. Okay, now the next and the last type of schizophrenia is catatonic schizophrenia, like disturbed movement. Okay, primary feature होता है extreme disturbance in motor behavior, either moving too little or far too much. ठीक है, की फीचर्स होते हैं लाइक इमोबिलिटी, मोटर इमोबिलिटी, अ पर्सन वेयर अ पर्सन स्टेज कम्प्लीटली मोशनलेस फॉर आवर्स, लाइक घंटों तक वो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. ठीक है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इफ़ अ क्लिनिशियन मूव द पेशेंट आर्म इनटू एन ऑकवर्ड पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सो उनका हाथ ऐसे ही रहेगा फ्रोजन. ठीक है, स्टैचू की तरह. ओके, नाउ लाइक एकोप्रेक्सिया, लाइक सेंसलेसली रिपीटेड समवन एल्स वर्ड, मतलब वो मिमिक करते हैं दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के मूवमेंट्स को मिमिक करते हैं. ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. एंड अब इसके कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, इसको क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. तो बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं. अगर आपकी फैमिली में किसी को था तो इट इज़ अ चांस कि उनके बच्चों को भी हो. ठीक है, ट्विन स्टडी की गई है जहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें लाइक 48% चांसेस हैं कि दूसरे ट्विन को भी सिजोफ्रेनिया हो, और नॉन आइडेंटिकल ट्विन में 17% चांसेस होते हैं कि सेकेंड ट्विन को भी हो. ओके, सो लाइक और हो गया प्रीनेटल एक्सपोजर, लाइक जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी हुआ हो, प्रेगनेंसी और बर्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, या अर्ली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुआ हो, या मैटरनल स्ट्रेस हुआ हो, उसके वजह से भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर की. सो इसमें लाइक न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर होता है. जिन लोगों को लाइक सिजोफ्रेनिया होता है उन लोगों को ब्रेन का साइज इज़ लाइक बिगर देन द नॉर्मल पर्सन, एंड उनमें कुछ उनका लाइक बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के वो इवॉल्व ही नहीं हुए होते हैं. ओके, सो दीज वर द फ्यू फैक्टर्स ऑफ लाइक परसीविंग अ सिजोफ्रेनिया. ठीक है, तो yeah, this was all about schizophrenia. And if you know anyone who have these all conditions, so definitely उनको psychiatrist के पास लेके जाइए. They need a serious help. Okay, so I hope आपने बहुत कुछ
आपको बहुत कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।